What do you think? मैं चाहता हूँ सर कि पहले आप मतलब हमें थोड़ा इंसाइट्स दें दैट व्हाट इज हार्ट एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द अपनी तरफ से सर आप पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे सर बाद में हाँ हमारे कुछ सवाल हैं हम सभी लाइक हाँ हाँ एथलीट्स के और पहले हम चाहते हैं सर आप इंट्रोडक्शन दें पूरी तरीके से जो आप बताना चाहते हैं ताकि हमें नॉलेज मिले हम यहाँ नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं सर basically human heart is a four chamber organ. यस Human सर heart is a four chamber organ, and the heart is supplied by the three major arteries. For Yes, the cardiovascular system, heart is supplied by the three major artery, and it has a four chamber. यस सर Three major arteries are very important for the blood supply of the heart and for the normal functioning of the heart. Any obstruction, any plaque, any atherosclerosis in these arteries can lead to the heart attack or the myocardial ischemia or myocardial infarction. Generally, we know is that heart attack. Yes, So this is the most important organ of the circulatory system, and it works like that. यस सर Yeah. यस तो सर जो हमारे हम चाहते हैं कि हम थोड़ा जाने कि एक्चुअली में बेसिकली जो हार्ट का आजकल डिजीज कुछ दिनों से बढ़ने लगा है यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी है पहले ऐसा सुनने को आता था कि मतलब कोई इंसान का अगर 60 प्लस है तो शायद उसको हार्ट अटैक के चांसेस हैं बट आजकल तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है इसका रीजन Definitely. Previously, this was the disease of the old age, 60s, 17, 80s. But now the age of the heart disease is decreasing gradually. Yes, Now sir. it is very common in 40s, even in the 30s. I routinely see in my hospital that 30 साल का young patient है उसको क्या कहते हैं heart attack हो गया उसकी coronary block हो गई तो Yes, definitely this is increasing in the younger population. Yes, sir. And Yes, the sir. reason behind this is 2 or 3 fold. First is the lifestyle, second is the nutrition or diet, and third is the stress. Yes, sir. I think these are the 3 most common factors which causing the increase in the heart disease in the younger population. Right, sir. Right. मींस स्ट्रेस तो सर आजकल बढ़ ही गया है मतलब स्ट्रेस का तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में सुनने को आया है और सुसाइड वगैरह भी कई सारे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं Definitely in the COVID period, on the post-COVID period, there was a lockdown, there was a fear of COVID and job loss, economic, financial. There was a lot of stress during the lockdown period. Right, sir. It's a very stressful life to the young generation who are working outside and normally going to the office or other places. So this was the major cause of the burden to the heart, the stress. Right. And other aspect of the lockdown or this corona was that the people become very sedentary lifestyle. घर पे रहते थे और eating habits भी थोड़ी change हो गई थी तो at that time the lockdown plus stress, eating habit, the blood sugar and the hypertension incidence was gradually increases. Right, sir. तो दैट्स व्हाई इस कोरोना के पीरियड से जो उसने लॉकडाउन किया लॉकडाउन में लोगों के ब्लड शुगर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसकी वजह से थोड़ा हार्ट पे लोड पड़ा जो प्रीवियसली डिसीज हार्ट था क्या कहते हैं तो उनको और ज्यादा एक्सेसरेट हो गई और सेकंड जो पॉइंट था कि जो कोरोना इन्फेक्शन होता है इटसेल्फ दैट इंक्रीजिंग द क्लॉटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड ओके इटसेल्फ ये क्लॉटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड इंक्रीज कर देता है तो इससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट की दैट हैज मोर चांसेस टू बिकम अ ऑब्स्ट्रक्टेड और फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट करेक्ट देयर वाज 2 रीजन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रेस lot of sedentary life and other was due to the corona infection there was an increased chance of atherosclerosis and clot formation in the coronary arteries combined of these effect results in the sudden death of the many young persons. The probable explanation which has thought in our community. It means sir जो एक तो stress को हम कम करें and plus if we can have a proper diet and right nutrition, micronutrition and macronutrition, these can help out to have a better healthy body. Definitely. Because the other factors like pollution, adulteration, stress, these are some limited factor. What we can do from our side is the diet, exercise, and decrease the stress level. This is in our hand. We have also sir one of the products Seabuckthorn and it is full of nutrition properties and more than 190 nutrition are there. So I think if this kind of product people will be taking so they will have a better nutrition value in their body.
Definitely, definitely. These alternate medicines like the Sivakthorn and the Ashwagandha and most importantly the Arjun Chal, Arjuna Right. Resh. These are very Right. important and helpful in these days because these have direct protective effect on the heart. Especially Right. Sivakthorn, it has contained the omega-3, omega-6, omega-9 and 7 fatty acids, which are very good for the heart and also decrease the cholesterol level and the blood sugar level also decreased. And overall, these increase the immunity of the patient and the immunity of the general person. So apart from the exercise, diet, and decrease the stress, we can also take help of these supplements. Right, sir. But Right, the sir. time of the quantity, timing of the supplement, and the purity of the supplement should be checked before the use. That is important. That is important, sir. Right, sir. Right, sir. Acha, sir, if you don't mind, like people are requesting us that if sir can come on video also, we are very much. Oh, sorry. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, And okay. right, sir. So, sir, our next question is that is our health, heart health, connected to our weight also? Definitely. Body weight have a great impact on the heart wellness. Right, sir. Like the obesity. Obesity, first of all, मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि obesity क्या है. हम कहते रहते हैं कि obesity, obesity. Obesity is basically the disproportion of the weight and height. Correct. And for the obesity measurement in the medical term, we use a term body mass index. This is the BMI. BMI. And body mass index we obtain from the dividing weight in the kg and divided by the height square in the meter. So roughly the number is 25. If the BMI of a person is more than 25, then he is the overweight. He or she is the overweight. And if it is more than 30, then he or she is the obese. And what obesity does? Obesity causes basically increased chances of diabetes because the obesity causes the increase the insulin resistance in the body. It causes the hypertension. So combined effect of diabetes and hypertension causes the adverse effect to the heart. So obesity is definitely a very risk factor for the development of the any cardiac disease. और हमें ये भी समझना होगा कि obesity क्यों होती है. Obesity basically 3 reasons से होती है. Either excessive diet or not healthy diet. Number 1, diet. Number 2 is the lack of exercise. और number 3 genetic. तो बेसिकली हम अगर अपनी डाइट को अपनी एक्सरसाइज को हम थोड़ा कंट्रोल करें तो हम अपने वेट पे कंट्रोल कर सकते हैं. और सेकंड इज अगर वेट हम कंट्रोल करते हैं, सपोज 2 or 3% भी वेट हम कम कर देते हैं अपना, तो देन इट कॉजेस द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज. राइट सर. राइट सर. राइट सर. एंड सर उसमें भी हमारे पास बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें हमने एक फिटविन फॉर्मूला दिया है, जिसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके वेट को कंट्रोल करते हैं या आपके ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं. तो अगर कुछ ऐसे सप्लीमेंट लिए जाए जैसे हमारा फिटविन है विंजेरा का, और उससे कुछ वेट कम हो, तो मुझे लगता है हार्ट के चांसेस भी अगर वेट कम करते हैं आप तो कम होगा. डेफिनेटली कम हो जाते हैं. मैंने जैसे आपको बताया कि हम 3 to 5% वेट कम कर देते हैं. सपोज कोई 80 kg का है और 80 kg का वो केवल अपना 3 या 4 kg वेट भी कम कर देता है, तो इससे हार्ट जो डिसीज होने के चांस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं. सो ये मतलब हेल्पफुल है और बॉडी वेट का थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए. एंड सर आजकल तो ये भी देखा गया है कि कोई इंसान दुबला पतला भी है बट उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो ये अपने आप में 2 अलग अलग बातें आती हैं. हाँ नहीं, डेफिनेटली देखिए जो भी इंसिडेंस है, देखो एज कम एज में हार्ट अटैक होते जा रहे हैं, दुबले पतले लोगों को हार्ट अटैक होते जा रहे हैं, जो अपेरेंटली नॉर्मल लोग हैं उनको हार्ट अटैक होते जा रहे हैं. राइट सर. जो बेसिक कॉज है वो केवल और केवल ये है, क्या कहते हैं कि अगर जो these are नॉन कॉज लाइक एडल्ट्रेशन इन द फूड, नंबर 1. नंबर 2 स्ट्रेस लेवल, एंड नंबर 3 इज sedentary lifestyle. So right, basically because of all these combined effects this happens. पर ये है कि अगर डेफिनेटली अगर कोई पतला इंसान है उसको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, एज कम है उसको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो देन द पीपल जो भी नॉर्मल लोग हैं उनको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. बेसिकली ये चीज एक एपिडेमिक की तरह हो रही है. हार्ट डिसीज बेसिकली एपिडेमिक की तरह हो रही है.
तो हमें और ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कि हम अपना ध्यान रखें, अपना बॉडी वेट, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, इन सब चीजों का बेसिक ध्यान रखें। राइट सर। एंड एंड उसमें भी सर ये होता है कि एक बार अगर आपको हार्ट अटैक के चांसेस अगर बढ़ गए तो फिर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है आई थिंक सर, उसमें जो आपके स्टंट्स वगैरह डलते हैं या बाईपास होता है। नहीं, और हम इस जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट सर। तो हमेशा मतलब प्रिवेंशन ज्यादा बेटर होती है। और बेसिकली एक बार हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो आप मेडिसिन लेते हैं या स्टंटिंग होती है या फिर क्या कहते हैं बाईपास करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हार्ट की जो इंजरी होती है वो हो चुकी होती है। बेसिकली जो भी चीजें करी जाती हैं हार्ट में वो एक्यूट करी जाती है कि फर्दर इंजरी ना हो। तो जी। डेफिनेटली ट्रीटमेंट है, सब एंजियोप्लास्टी कुछ और है। एंजियोग्राफी वगैरह में भी सर काफी जो प्रोसेस होता है बहुत बहुत पेनफुल होता है, आई हर्ड सो। नहीं, आजकल बेसिकली जो केवल एंजियोग्राफी होती है आजकल तो बहुत ही एडवांस चीजें हो गई है, तो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता। इवन पहले जो जो अपनी जो ग्रॉइन होती है, यहाँ की आर्टरी होती है, वहां से हम एंजियोग्राफी करते थे, केवल वहां से एक नीडल डाल के वहां से वायर डालते, एंड देन वायर गोज टू द हार्ट एंड पुश द डाई एंड द वी टेक द फोटोग्राफ ऑन द स्क्रीन। लेकिन अब तो केवल हाथ से भी एंजियोग्राफी कर देते हैं। तो बेसिकली एंजियोग्राफी और ये प्रोसीजर्स हैं, ये इतने ज्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, उसके बाद उसको अगर छल्ला डालने की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज लिटिल बिट रिस्की, ऑब्वियसली सर। बट लाइफ सेविंग आल्सो। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट सर, करेक्ट सर। और इवन मुझे ऐसा लगता है, क्या कहते हैं, कि एकदम छोटी छोटी बातों का और कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम इंसिडेंस ऑफ द हार्ट अटैक और कार्डियक डिसीजेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। राइट सर। मतलब यहाँ पर सर एक सवाल आता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट अटैक की संभावना हमारे पास ज्यादा है, मेरे ज्यादा है, वो कैसे देखिए, पता? हार्ट अटैक अगर अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। अब ये टिपिकल सिम्टम जो हार्ट अटैक का होता है कि लेफ्ट आर्म में पेन होता है, वो पेन रेडिएट होता है नेक की तरफ और जॉ की तरफ, वो एक टिपिकल सिम्टम है, ज्यादातर मरीजों में ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी थकान होना, सांस का फूल जाना, एकदम स्वेटिंग हो जाना, घबराहट होना, सांस का एकदम तेज चलना, उल्टी हो जाना, ये भी सब एक हार्ट डिसीज के लक्षण होते हैं। और प्राइमरी लक्षण ज्यादातर ये होता है कि इसको अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हो रही है तो बहुत एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है, उस दूरी पर चलने के बाद पेशेंट को थोड़ा हैवीनेस फील होने लगती है, छाती में हैवीनेस फील होने राइट। लगती है, तो उसे लगता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर आराम कर लेता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर चलता है तो फिर हैवीनेस होती है। या कोई स्टनस एक्सरसाइज करता है, एकदम सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत पड़ती है उसे, तो एकदम ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस फूलने लगती है। तो ये सब चीजें इसका प्रेजेंटेशन होती है कि कुछ एबनॉर्मल है। राइट। तो उसके लिए उस मतलब चेकअप पे जाना चाहिए और थोड़ा सा उसमें एक प्रोसेस होता है, टेस्ट वगैरह सर इसमें क्या हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, आइडियली अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो बेसिकली हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक। लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर है, हम तीन चीजों को लेते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। तीन मेजर हम टेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, रूटीन टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इमरजेंसी की नहीं कर रहा हूँ, रूटीन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर आइडियली क्या होना चाहिए कि आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज एटलीस्ट 1 टाइम्स इन अ ईयर इसको क्या कहते हैं मेजर करना चाहिए। और जिनको रिस्क फैक्टर है उनको एवरी ईयर फॉर 2 टाइम्स। और एटलीस्ट एट द एज आफ्टर द एज ऑफ 30 to 35 every person should at least do 1 time blood pressure measurement in a year। तो 35 साल के बाद जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको भी अपना एक बार ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है। क्योंकि जो भी ये डिसीज होती है, जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये मालूम नहीं पड़ता। ये विद द 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर ये बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन आदमी को बहुत ज्यादा कभी कभी सिम्टम नहीं आते हैं उसका। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो उससे एकदम ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता है, लेकिन जब वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो वो ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, वो ऑर्गन्स हमारी डैमेज होने लगते हैं। लेकिन ऑर्गन्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि जब तक कि सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हो जाता तब तक हमको मालूम नहीं पड़ता। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन है उनको कराया जाए। जैसे ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया कि 35 साल के बाद हर साल एटलीस्ट 1 टाइम को उसको चेक करना चाहिए। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में क्या करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल में अगर 35 ईयर के बाद एवरी 3 to 4 ईयर कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। और ब्लड शुगर फॉर एवरी आफ्टर 35 ईयर एवरी 2 ईयर ब्लड शुगर चेक करना चाहिए।
तो बेसिक चीजें हैं ये, क्या कहते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको हम चेक करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो पर्सन हाई रिस्क पे होते हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है हाई रिस्क है, अब ये हाई रिस्क क्या होता है इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। अब हाई रिस्क क्या होता है कि अगर किसी को, क्या कहते हैं, डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की परेशानी है, कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, या किसी की फैमिली में पहले से हिस्ट्री है कि किसी को हार्ट डिजीज हुई है, कि हार्ट अटैक हुआ है, तो ये 5 फैक्टर ऐसे है कि यदि इस 5 फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर है तो हमें इन टेस्ट को करना भी चाहिए, और आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40 एक कार्डियोलॉजिस्ट से या कहीं जाके अपना कंप्रीहेंसिव चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि यदि ये रिस्क फैक्टर है तो हमारे जो चांसेस हैं हार्ट डिसीज के वो बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए फिर डॉक्टर स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस टेस्ट होता है, इकोकार्डियोग्राफी होता है, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को, जो आदमी को, उस पर चलाते हैं ताकि उससे वर्क कैपेसिटी होती है, फिर देखते हैं, क्या कहते हैं, कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये सब चीजें इस पर डिपेंड करता है, लेकिन रूटीन इन्वेस्टिगेशन ये करनी चाहिए आफ्टर एज ऑफ 35 ईयर। ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल सभी को करना चाहिए। ब्लड शुगर को एवरी 2 ईयर्स 3 ईयर करना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल को 4 ईयर्स और 5 ईयर्स करना चाहिए। सर इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कुछ भी खा रहे हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है उनका, या ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मेरा सवाल ये है कि सर इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है सर इन सभी डिजीजेस में? देखिए, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो आजकल जो प्रिवेंटिव मेडिसिन चल रही है, और इवन स्पेशली इन द पर्टिकुलर पोस्ट कोविड पीरियड एंड ड्यूरिंग कोविड पीरियड, हम सभी लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि यदि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं तो हम जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं उनको, उनका इफेक्ट को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो डेफिनेटली है कि हम, क्या कहते हैं, कुछ जो डाइटरी हैबिट्स हैं या फिर और कोई प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो पॉल्यूशन भी है, कभी कभी ऐसा सोचा जाता है, कुछ रिसर्च में देखा गया है कि ये पॉल्यूशन की वजह से भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। ये पॉल्यूशन भी एक मेजर कॉज है, क्या कहते हैं, हार्ट डिसीज, रीनल डिसीज और लंग डिसीज होने का। तो अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो बेसिकली हम कोप अप कर पाएंगे इन सब चीजों के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट डिसीज। जी 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 जी। मतलब इसमें सर, इसमें ऐसा जैसे हमारे सीबकथॉर्न में विटामिन सी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, प्लस फ्लोवेनॉइड, विटामिन सी बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी के लिए। जी जी। और तो मैंने भी लिटरेचर में पढ़ा हुआ था, इसमें, क्या कहते हैं, जो आपका सीबकथॉर्न है, इसमें मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स बहुत सारे, फास्फोरस, जिंक एंड फास्फोरस होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। और जी ये बेसिकली ब्लड कोलेस्ट्रॉल और, क्या कहते हैं, ब्लड शुगर, उसको भी इम्प्रूव करता है थोड़ा सा। जी। तो these are good things actually, can be taken as a supplement to increase the immunity. राइट सर। सर ये इट्स अ कॉमन सेइंग इन इंडिया दैट एवरी पर्सन हैज 3 चांसेस विद हार्ट अटैक। इज इट ट्रू? मतलब ऐसा बोला गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मिसनोवर है, दिस इज अ मिसनोवर। जी। बिकॉज जो हार्ट होता है अपना, उसकी बेसिकली 3 आर्टरी होती है मेन। हार्ट इज सप्लाइड बाय द 3 मेन आर्टरीज, राइट। और एनी ब्लॉकेज इन any artery can lead to the heart attack. It depends on the size of blockage and the duration of blockage. So मेरे ख्याल से इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि 3 बार हार्ट अटैक होता है या 3 चांस देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर फर्स्ट हार्ट अटैक है और उसमें ज्यादा 3 वेसल्स इन्वॉल्व हो गई हैं और क्लॉट ज्यादा हो गया, तो फर्स्ट हार्ट अटैक भी फैटल हो सकता है आदमी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 हार्ट अटैक को बॉडी परमिट करती है या फिर 3 होते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब इस चीज का रिलेशन है। ये डिपेंड अपॉन कितना ब्लॉकेज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है, उनको इवन चेस्ट पेन भी नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज से क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब पेन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो डायबिटीज पेशेंट के साथ ये और एक प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हैं, कि वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि उनको पेन नहीं होता। राइट। तो कभी कभी माइनर हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कितना ब्लॉकेज। अगर कम ब्लॉकेज हुआ है तो थोड़ा माइनर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उससे हो सकता है कि सर्वाइव कर जाए पेशेंट और आगे चलता रहे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई 3 हार्ट अटैक बॉडी परमिट करती है, ऐसा कुछ। राइट सर, राइट सर। सर एज अ डॉक्टर, मतलब एज अ लाइक डॉक्टर अगर मैं बोलूँ तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? डाइट में अपने क्या चेंजेस करने चाहिए, या डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में क्या क्या उनको बदलाव करने चाहिए आज के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, डाइट का हम सभी को मेरे ख्याल से मालूम है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जी। डाइट में बेसिकली जो अपनी है, जैसे कि अब
हेल्दी डाइट किसे कहते हैं, मतलब हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट को कम लिया जाए। जितनी भी व्हाइट चीजें हैं आप एक कॉमन उससे सोचिए, देखिए व्हाइट सॉल्ट होता है, व्हाइट ब्रेड होती है, व्हाइट व्हीट, व्हाइट राइस, जितनी भी ये चीजें हैं इनको कम से कम खाया जाए। जैसे कि रिफाइंड शुगर्स होती हैं और ये बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पास्ता पिज्जा, इन सभी में क्या कहते हैं रिफाइंड शुगर होती है और क्या कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो इनको कम से कम लिया जाए। और जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसका यूज करना चाहिए। वेजिटेबल फूड्स का अच्छी तरह यूज करना चाहिए। राइट राइट। और थोड़ा सा एक रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए, एक्सरसाइज बेसिकली अगर 15 मिनट की मॉर्निंग रनिंग एक्सरसाइज है तो वो सफिशिएंट होती है, या 30 मिनट डेली की विस्क वॉकिंग और 5 to 6 days इन अ वीक इज सफिशिएंट, इतना रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल लेने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं कहीं तो अगर 1-2 स्टेयर्स जा रहा है तो हम स्टेयर्स का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा जितना कोशिश हो सके, क्या कहते हैं मोबाइल मोबाइल देने की कोशिश करें। और सेकंड इज स्लीप। स्लीप भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, क्या कहते हैं हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए। अगर हम क्या कहते हैं 7 आवर्स की सफिशिएंट स्लीप लेते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है और क्या कहते हैं हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे मेडिटेशन हो सकता है, मेडिटेशन को हम यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस में बेसिकली कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी से, तो वो हार्मोन्स रिलीज होकर हार्ट को हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। तो हम अपना कोर्टिसोल। स्ट्रेस, हाँ कॉर्टिसोल रिलीज होता है उससे, क्या कहते हैं स्ट्रेस लेने से, तो वो एक डेलीटेरियस इफेक्ट करता है हार्ट पर। तो मेडिटेशन से, सफिशिएंट स्लीप से थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह अपने को मोबाइल रख सकते हैं। डाइट में मैंने जैसे बताया आपको कि फ्रूट्स, हेल्दी डाइट्स कर सकते हैं, शुगर्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अपने बॉडी वेट का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं या फिर हमारी डाइट ठीक नहीं है, तो हमें थोड़ा सा उस पर वर्क करना होगा। और इसके बाद अपनी इम्यूनिटी के लिए हम जैसे जो सप्लीमेंट्स होता है अपने सी बकथॉर्न और क्या कहते हैं अर्जुना रेस्ट और अश्वगंधना वगैरह, इन सब का भी हम एक मतलब एडिक्वेट क्वांटिटी में और अंडर सुपरवाइज कंडीशन में यूज कर सकते हैं। राइट सर। सर एक टर्मिनोलॉजी आती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड इसमें मतलब बड़ी सारी बातें बोली जाती है कि जितना आपका हाई एंटीऑक्सीडेंट आप लोगे लाइक फूड्स या जो भी, तो आपकी जो है बॉडी और ज्यादा बेटर काम करेगी। एंड हमारे सर एंटीऑक्सीडेंट में एक और एक वैल्यू होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, तो वो सिबोथॉर्न में बहुत ज्यादा पाई गई है। तो क्या एंटीऑक्सीडेंट एक इम्पोर्टेंट वो है सर? डेफिनेटली जितनी भी जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उसमें ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। और जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल की तरह काम करते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, तो फ्री रेडिकल्स की तरह काम करते हैं और ये बॉडी को हार्मफुल होते हैं। जो म्यूकोसा होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनकी म्यूकोसा उसको इंजर करते हैं, वहाँ इंजरी होती है तो वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस होती है और प्लाक बनता है। तो पूरी बॉडी में एक चीज इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, इन्फ्लामेशन में सूजन टाइप की एक पैदा करते हैं। तो हम अगर एंटीऑक्सीडेंट लिए जाएं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, सी बकथॉर्न और ये अश्वगंधा और ये अर्जुन चाल और भी जो सप्लीमेंट होते हैं और भी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इनकी ज्यादा होती है उनको लिया जाए तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं टू रिड्यूस ऑन द स्ट्रेस ऑन द बॉडी एंड द हार्ट। दीज आर वेरी हेल्पफुल। जी जी जी। सर इसमें एक वर्ड आता है जो हमने हमारे उसमें प्रोडक्ट में पाया जाता है जिसको हम 5-HTP मॉलिक्यूल बोलते हैं, मतलब स्टेम सेल्स को वो थोड़ा सा बढ़ाता है। तो स्टेम सेल्स सर कितना बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी में? स्टेम सेल बेसिकली जो भी स्टेम सेल्स होती हैं वो थ्योरेटिकली तो ये होता है कि क्या कहते हैं कि उसी से पूरी सेल्स ग्रो होती हैं बॉडी की। रिकवरी में सर ऐसा कुछ? हाँ रिकवरी में मे भी मतलब कुछ ऐसा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका कोई ज्यादा लिटरेचर वगैरह ऐसा भी ज्यादा पब्लिश नहीं है। लेकिन एक जो स्टेम सेल्स होती हैं बेसिकली उसी से बॉडी की और भी जो सेल्स बनती हैं वो चीजें उसमें क्या कहते हैं यूज होती है। ये भी इसका सर हार्ट से रिलेटेड ऐसा बोला गया है कि एचडीएल और एलडीएल का एक अच्छा एक जब रेशियो होता है तो आपका जो है क्लॉटिंग ब्लड में या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कम होता है। तो ओमेगा 7 का उसमें शायद सर रोल काफी डेफिनेटली ओमेगा 7 का उसका बहुत ही पॉजिटिव रोल होता है और वो एलडीएल को कम करता है। बेसिकली एलडीएल होता है एक बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल ही जो होता है वो बॉडी में हमारी उसको क्या कहते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो प्लाकिंग होती है, उसमें बेसिकली जो मुख्य भूमिका होती है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की होती है, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। जी सर।
जी। और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव होता है बॉडी के लिए। तो थर्ड होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड भी क्या कहते हैं जो अगर एक्सेसिव है, जैसे 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है बॉडी में, तो वो भी हार्मफुल होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाता है। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि ओमेगा 7 एंड आई थिंक ओमेगा 9, 7 मेरा एंड 9 है। 9, यस। both of fatty acids are very protective to decrease the level of the low density lipoproteins, low density cholesterol, राइट सर, राइट सर, which is the main culprit for the atherosclerosis. राइट सर, राइट सर। अच्छा सर, जो मेडिकेशंस ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे एक खून को पतला किया जाता है करने की मेडिकेशंस यूज होते हैं, जिससे कि आपका जो है ब्लड फ्लो अच्छा हो, ना ज्यादा प्रेशर होना चाहिए ना कम प्रेशर होना चाहिए। तो उसमें सर एक जैसे सीबकथॉर्न का रोल पाया गया है कि उसमें थोड़ा सा वो खून को पतला करता है, जैसे स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन शायद यूज होती हैं थोड़ी। Definitely, you are right. You are right. राइट सर, Statins are used to decrease the high density, low density cholesterol and decrease the total cholesterol of the body. राइट सर। That's why it increase the fluidity of the blood. Means the blood को थोड़ा सा क्या कहते हैं वो पतला टाइप करते हैं। राइट सर, राइट सर, राइट सर। एंड सर मतलब वैसे तो देखा जाए तो अभी इंडिया का हेल्थ इंडेक्स बहुत नीचे है। तो आपकी तरफ से जैसे अभी प्रिकॉशन में क्या होता है कि आपने बता दिया एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, डाइट्स अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस में भी जो है कहीं ना कहीं आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मेडिकेशंस वगैरह वो सब कुछ करना चाहिए। और इसमें बाकी इसमें एक चीज और बेसिकली ये आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल ऐसा ये तो सब चीजें बेसिकली एक बता दी जाती हैं और कि लोग करते भी हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, क्या कहते हैं कि जिसको हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से ओमिट करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, neglect इंडियंस करते हैं। इग्नोर करते हाँ, इग्नोर हैं। करते हैं, हम इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं जानते हैं। जबकि अगर थोड़ी सी बात ध्यान रखी जाए, जैसे अगर आप 35 ईयर से ज्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना, एवरी 3 या 4 ईयर में एक बार अपने कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल चेक करा लेना है। एवरी 2 ईयर में एक बार केवल शुगर प्रोफाइल चेक करा लेना है। 2 साल या 1 साल में केवल एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लेना है। तो 35 साल और 3 साल का मतलब ये हो गया कि अब जब तक आप 40 साल के होंगे तो हार्डली आप 2 या 3 बार आपने चेक कराया होगा। लेकिन अगर आपको ये 30-35 साल पे मालूम पड़ जाता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है या आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो उसका आउटकम फिर आपको 40-45 के बाद दिखाई देता है। तो एक ये सब चीजों के साथ साथ मेरे ख्याल से एक थोड़ी अवेयरनेस ये भी होनी चाहिए, थोड़ी लेजीनेस रहती है हम लोगों में कि हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उनको थोड़ा सा करना चाहिए। और स्पेशली एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जैसे जो फैमिली हिस्ट्री होती है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। अब फैमिली हिस्ट्री किसे कहते हैं, जैसे कि अब ये भी एक बहुत ही मतलब शायद नॉर्मल पब्लिक को नहीं मालूम होता कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ द सीएडी का मतलब क्या होता है। जैसे आपकी फैमिली में मदर फादर दादा दादी जो भी नियर रिलेटिव हैं, उनकी एज में अगर कोई मेल है तो उसकी 55 और फीमेल है तो 65। इस एज से पहले अगर किसी को हार्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हार्ट डिसीज है। तो इस तरह की अगर कोई हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा सा और सावधान हो जाना चाहिए। सावधान इन द सेंस कि आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए अपने को। और इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ भी निकलता है ऐसा कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ब्लड शुगर ज्यादा है या आपका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, तो हम सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे एडवाइस लेके अपने स्पेशल जो टेस्ट होते हैं आगे के, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्ट, उन सबको करना चाहिए। तो बेसिकली इसका रोल ये है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अपनी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें। अर्ली डायग्नोसिस, इम्यूनिटी, लाइफ स्टाइल चेंज, इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएंगे इन सब चीजों को। राइट सर। सर आपने अपने लाइफ टाइम में और अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, बहुत लोग आते जाते होंगे। सर आपके अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस आपने देखे हैं हार्ट पेशेंट्स रिलेटेड, मतलब कुछ भी आप अगर डेटा में अगर बात कर पाए। डाटा में डेफिनेटली, जैसा कि हम सब अभी इतनी देर हम शुरुआत में हमने बात करी कि अब जो पहले जो एज होती थी, जो पेशेंट प्रोफाइल होता था, वो एक ऐसा माना जाता था कि जो हार्ट डिसीज है वो एक हायर क्लास की डिसीज है, कि ये एक बड़े लोगों की बीमारी है, छोटे लोगों को या फिर जो क्या कहते हैं ज्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं उनको नहीं होती है। लेकिन अब लो बीपी हाँ, होता है और हाई हाँ, बीपी। हाई बीपी भी होता है। तो अब ऐसा लगता है क्या कहते हैं, पहले जो सोचा जाता था कि ये हाई क्लास की बीमारी है और ये केवल एजिड लोगों को ही होती है, अब ऐसा नहीं है। और इवन आज से 7-8-10 साल पहले थोड़ा सा ट्रेंड जो एज कम होने का था वो थोड़ा स्लो था, लेकिन अब ये 3-4-5 साल से और ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्या कहते हैं कि इवन 30-35
ईयर के पेशेंट्स भी क्या कहते हैं हम लोगों के पास आते हैं, क्या कहते हैं उनके आर्टरी ब्लॉक हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और इवन स्पेशली कोविड पीरियड में इसके बाद ये हार्ट के इंसिडेंट्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। एक सर इसमें सोचने वाला एक क्वेश्चन आता है बार बार, जैसे सौरव गांगुली जी को हार्ट अटैक आया, तो इतना फिट और प्लेयर और इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल, मतलब एकदम बिल्कुल फिट लाइफस्टाइल के बावजूद भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो एक सोचता है आम इंसान की क्या मतलब कैसे ऐसे हो गया। सर देखिए, इसका 2-3 चीजें होती हैं। एक जेनेटिक्स भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इसमें। जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करती है कि यदि आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हिस्ट्री है, तो फिर आपको भी उसके होने के चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो ये अंडरलाइंग डिसीज चलती रहती है, चलती रहती है। अब जेनेटिक्स को हम बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कोप अप कर पाए, लेकिन हम टोटली उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसका बेसिकली जो एक ये जो कंबाइंड जो इफेक्ट लगता है, वो 3-4 चीजें एक साथ मानी जाती हैं, कि जैसे कि लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशन, एडल्टरेशन, डाइटरी हैबिट्स, और लेस ऑफ इम्यूनिटी और स्ट्रेस, ये सभी चीजें एक कंबाइंडली बढ़ती जा रही हैं। तो इस चीजों के बढ़ने की वजह से जो यंगर एज ग्रुप है उसमें भी ये चीजें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले के जमाने में लोग थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे कि नहीं यार ठीक है, मतलब बॉडी ही है अपने आप काम करेगी। अब एक बड़ा मास, जैसे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यार सिर्फ बूढ़े लोग ही जो है अब अपने सेहत का ध्यान रखें। ना यंग ना ना, जनरेशन, बिल्कुल भी नहीं। यंग जनरेशन ओवर कॉन्फिडेंट आजकल बहुत रहती है सर, कि मैं मुझे क्या होगा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, यही कॉन्फिडेंस, यही इग्नोरेंस रहती है। तभी मैंने आपसे कहा कि आफ्टर 35 ईयर आप कितने भी हेल्दी हैं, आप कितने भी कुछ हैं, लेकिन अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते रहने चाहिए, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग सके। जरूरी नहीं है कि उसमें भी सभी चीजें पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन चांसेस होते हैं कि हमें जो मोटी मोटी जो परेशानियां हैं, जिनको हम दूर कर सकते हैं, इनको ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा कैच करें। इसलिए टाइमली इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा एक रोल है। अब जैसे कि, और दूसरी चीज एक और, लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर भी बहुत करते हैं। आपने देखा होगा जो के सिंगर थे, जो कलकत्ता के, जो अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके जब बाद में मालूम पड़ा, तो उनको मालूम पड़ा कि उनकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था, और ब्लॉकेज की वजह से उनको पेन भी हो रहा था। अब लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर हार्ट का पेन है तो हमेशा वो लेफ्ट आर्म में ही होगा, फिर गर्दन में होगा, फिर जॉ में होगा, जो टिपिकल सिम्टम होता है कि लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। जरूरी नहीं है, वो और चीजों से भी प्रेजेंट करता है। वो पेट में दर्द से भी प्रेजेंट कर सकता है, बैक में भी प्रेजेंट कर सकता है, राइट साइड में दर्द से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो उनको क्या कहते हैं, क्या लगता था कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो एसिडिटी का ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनके पास एंटी एसिड की टेबलेट्स भी बहुत मिली बाद में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने जो सिम्टम्स होते हैं ना, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी अगर लेफ्ट में साइड में पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मसल्स पुल हो गई है, या गैस्ट्रिक है, या गैस की प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, वो बहुत सी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं सालों साल, लेकिन फिर सडनली एकदम अटैक हो जाता है। तो अपने जो जो अगर लक्षण इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तो उनको तो इग्नोर नहीं ऐसा करना नहीं कि चाहिए, हार्ट डॉक्टर को में मिलना अगर चाहिए। प्रॉब्लम है तो हार्ट में ही दर्द होगा, दर्द कहीं भी हो सकता है, इसको सर, इग्नोर नहीं करना है। हाँ, ये इसको सबसे बड़ी इग्नोर नहीं इंपॉर्टेंट करना बात चाहिए, है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हार्ट का जो पेन है या हार्ट डिसीज है वो केवल आपको चेस्ट पेन से ही प्रेजेंट करेगी। ये आपको क्या कहते हैं, केवल थकान से भी प्रेजेंट कर सकती है, ये पेट में जलन से भी प्रेजेंट कर सकती है, तो ये इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकती है, जरूरी नहीं है। और राइट साइड में भी पेन हो सकता है उससे, और आपको चक्कर भी आ सकते हैं, हो सकता है कि आप चक्कर खा के गिर जाएं। तो ये सभी सिम्टम एक तरह से डिसीज के होते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क हैं और आपकी एज 35 या 40 से ज्यादा है, तो इन सिम्टम्स को वो नहीं करना चाहिए, और प्रॉपर एकदम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मिलना चाहिए डॉक्टर से। एंड सर इसमें एक सवाल इंपॉर्टेंट आता है कि जैसे मेडिकल फील्ड में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इलाज तो हो ही सकता है और बिल्कुल इलाज हमारा कराना ही है हमें अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन क्या अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके, जहाँ मान लीजिए 50% ब्लॉकेज है, 40% ब्लॉकेज है या 60%, तो क्या वो रिवर्सल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है सर देखिए सर, ब्लॉकेज। आज तक कोई अभी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है कि जिससे कि उससे कि उसको लेने से उसका रिवर्सल हो जाए। जो भी मेडिसिन हैं वो थ्योरेटिकली क्या कहते हैं, आगे प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज रोकती हैं, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज रोकती हैं, और कुछ ऐसी चीजें करती हैं, ऐसे हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवा होती है, ताकि हार्ट रेट ज्यादा ना बढ़े, तो ऑक्सीजन डिमांड नहीं बढ़ती है, तो फिर हार्ट अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं।
ब्लड थिनर्स होते हैं, ताकि ये होता है कि ब्लड थिन हो जाएगा तो आगे और ज्यादा क्लॉट नहीं होगा, तो क्लॉटिंग के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे क्या कहते हैं ये रिवर्स हो जाए। हाँ, ऐसा होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास करने के लिए कोलेटरल सर्कुलेशंस बन जाते हैं। जैसे कि कोई आर्टरी है जो ब्लड ले जा रही है, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसके साइड से आगे और पीछे आर्टरीज बन जाती है, तो वो उसको क्या कहते हैं मेन ऑब्स्ट्रक्शन को छोड़ के ब्लड आर्टरी से जाने लगता है, तो उससे सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। ऐसा ज्यादातर होता है। अब कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें जो कहते हैं, उस उन सब चीजों से वो एंजियोजेनेसिस कभी कभी थ्योरेटिकली ऐसा सोचा जाता है कि वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ऐसी तो कोई दवा नहीं है क्या कहते हैं कि जो उस ब्लॉकेज को रिवर्स कर दे, लेकिन ये है कि हाँ नई एंजियोजेनेसिस हो सकती है, आगे फर्दर प्रिवेंट ब्लॉकेज का ये कम हो सकता है उससे। लेकिन ऐसी कोई डेफिनेट चीज नहीं है क्या कहते हैं कि जो उसको क्या कहते हैं रिवर्स कर दे। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। लेकिन अगर तो उसको रिवर्स नहीं करती, आगे नहीं बढ़ने देती है, या फिर ये अल्टरनेट जो कोलेटरल्स डेवलप होने में उससे थोड़ा सा हेल्प होती है, तो ये भी क्या कहते हैं हार्ट अटैक और फर्दर रोकने में बहुत हेल्पफुल होती है। राइट सर। सर ये सारी नॉलेज बहुत, मतलब अगर हम कहें बात करते रहेंगे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, बट जो इतना इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे उससे कई सारी बातें हमें क्लियर हुई हैं। ये भी सर पता चला आपकी बातों से कि कोई जरूरी नहीं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो सिर्फ सांस फूलेगा, हो सकता है पेट में दर्द होगा, पीठ में दर्द बिल्कुल, होगा। पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, लेफ्ट आर्म में दर्द हो सकता है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपका जी मिचला सकता है, ये कुछ और, आपको पसीना आ सकता है, जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। राइट सर, राइट सर। और मतलब इन सभी चीजों से ये समझ में आ रहा है कि आप एक किसी भी एज ग्रुप के हो, ध्यान रखिए अपने हेल्थ का और फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। एंड मतलब बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको डाइट प्लान वगैरह देते हैं हम। लेकिन आपकी बातों तो सर बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं, बहुत सारे ऐसे बातें मिली हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी हमारे चैट सेक्शन में जरूर सर को वोट ऑफ थैंक्स जरूर करें और बताएं कि किस तरीके से सर ने कितना जबरदस्त सेशन दिया हमें और बहुत सारे इंसाइट्स दिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर like leaders and associates, they can have a session। सर आप देख सकते हैं चैट सेक्शन में आपके लिए बहुत सारे थैंक्स हैं, बहुत सारे। और हम यहाँ पे सर 550 लोग इस वक्त पे अवेलेबल, 550 लोग अवेलेबल हैं अक्रॉस द नेशन से, पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, डिफरेंट स्टेट्स में। ये बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है आपके तरफ से, क्योंकि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। जी जी बेसिकली लोगों को ऐसा नहीं है कि करने की मतलब करने का मन नहीं है, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 साल के बाद अपने को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहिए। राइट सर, तो ये राइट। सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो शायद इन चीजों को कम कर सर सकें। इनके लिए मतलब हमें एक रेगुलर टेस्ट जो आपने बताया, जो टेस्ट आपने बताए, उन टेस्ट को हम 2-3 साल में एक बार, 3 साल में, 4 साल में कर सकते हैं। कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, हाँ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड ट्राइग्लिसराइड्स। प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है, जिसमें कि सभी ट्राइग्लिसराइड, लिपिड, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी सब आ जाता है। ब्लड शुगर होता है जिसमें HbA1c होता है, क्या कहते हैं उसको कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपके रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर मैंने आपको वही बताया कि अगर स्मोकिंग है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबिसिटी है, तो फिर आपको 40 या 35 के बाद एक प्रॉपर आपको अपना इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए पूरी तरीके से डॉक्टर से मिलके, ताकि वो आगे कुछ देख सकें। तो बेसिकली अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, ये इसका एक क्रक्स है, प्लस इंक्रीज इन द इम्यूनिटी, राइट सर, राइट सर। दैट कैन गिव अ लॉट ऑफ हेल्प। एंड सर हमारे बीच में हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनके माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए हैं और हम आपकी ब्लेसिंग्स और आपका नॉलेज ले पाए। तो मिस्टर निखिल प्रताप सर भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं उनसे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक वोट ऑफ थैंक्स सर की तरफ से सर को मिले। सो प्लीज सर। I know, Mr. Nikhil. Thank you. I am also thankful to you to give me opportunity to participate in this awareness program. Thank you. Thank you very Thank much. you so much. Thank you so much, Thank sir. you, Nikhil. And Thank you. thank Give you me so much, chance sir. And to I, be a part of this yes, awareness sir. program. जी, थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम मैंने डॉक्टर साहब के साथ स्पेंड किया था फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में ही, और वहाँ पर काफी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स हम लोगों के बीच में शेयर हुए थे। और मैंने सर को उस वक्त पे बताया भी था कि विंजेरा किस तरह से सीबकथॉर्न को
जो कि एक एंशिएंट आयुर्वेदिक चीज है, पॉपुलर करने की कोशिश कर रही है, और किस तरह हमारे एसोसिएट्स जगह जगह पार्क्स में और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इवन मैंने सर को कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, और सर वाज सो डेफिनेटली एक्साइटेड, सर वाज मैंने सो देखी थी, एक्साइटेड। वो सब तस्वीरें देखी थी और मैंने बाद में सर्च भी किया, तो मुझे सर्च में जो मालूम पड़ा कि दिस इज अ सर्टिफाइड मेडिसिन एंड यूजिंग फ्रॉम द थाउजेंड्स ईयर ओल्ड इन द यस चाइनीज सर, मेडिसिन एंड टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। तो यस सर। ये सब तो चीजें मतलब सर वाज सो एक्साइटेड, सर वाज सो एक्साइटेड कि सर ने बोला कि निखिल जी आप मुझे बताओ अगर मैं भी आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। और सर इतने शॉर्ट डेफिनेटली नोटिस पे डेफिनेटली आपने आई विल ग्रेस बी किया, हैप्पी। और आज आप हमारे बीच में हैं, तो हमारी पूरी विंजारा फैमिली की तरफ से आपको तहे दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज आए, और इतनी सारी इंपॉर्टेंट आपने हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स पर जवाब दिया। और मतलब एक बात तो कहनी पड़ेगी सर, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी सरल शब्दों में आपने इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स को हैंडल किया है। और दिस इवेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है टू पुट इट अप ऑन यूट्यूब। तो मैं अरुण जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आस्क आवर आईटी टीम इफ वी कैन गेट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल। So thank you so much, sir. It was truly a memorable experience to host you with us. और चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम पर और हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे ही बना रहे। डेफिनेटली थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच, सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, ओवर टू यू अरुण जी। थैंक एंड यू। सर एक लास्ट में बस मैं यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे हार्टेरा एक हमारा कैप्सूल है जो हमने फॉर्मुलेशन जिसमें लिया था, और आपसे एक थोड़ा कंफर्मेशन चाहता हूँ कि हार्टेरा में हमारे पास अर्जुन छाल, दालचीनी, सर्पगंधा, लहसुन, अश्वगंधा, जटामासी, अजवाइन पात्रा, छोटी हरड़ एंड शंख पुष्पी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सर क्या ये थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के हार्ट के लिए? ये आयुर्वेद में और लिटरेचर में लिखा हुआ है कि दीज आर डेफिनेटली बेनिफिशियल टू द हार्ट, और इसको अगर सही अमाउंट में सब कुछ सही लिया जाए तो ये दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज आयुर्वेदिक मेडिसिन। और ये नॉर्मल हर्ब्स हैं जिन्हें हम रोज डेली यूज भी करते हैं, लहसुन, दालचीनी, अश्वगंधा वगैरह, तो दिस कैन बी टेक। राइट सर। एंड आपने ये भी बोला था सर कि प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये प्योरिटी और क्वांटिटी और उसको किस तरीके से लेना है ये बहुत जरूरी है, तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना होगा। नहीं सर, थैंक यू सो मच। एंड सर हम आपको दोबारा जरूर बुलाना चाहेंगे, और आपके इतने जबरदस्त सेशन के बाद लोग बहुत एक्साइटेड है सर, चैट सेक्शन में बहुत जबरदस्त कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो सर उम्मीद करते हैं सर हमारा, मेरी भी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को और सभी सुनने वालों को। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।